بیٹیاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور جن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارک بھی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹیوں کو پالنے والا جو ہے وہ جنت کا حقدار بھی ہے، اور اس حوالے سے ہی جب ہمارے سامنے یہ واقعہ آیا کہ گجرانوالہ کے ایک باپ نے اپنی 1 سال کی بیٹی کو پٹک کر قتل کر دیا اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش سے ناخوش تھا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کی فون کالز بھی لیں گے۔ راجہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دور جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اویس بھائی، بالکل یہ واضح سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی تھی تو ان کے منہ مرجھا جایا کرتے تھے اور ان کے دل میں ایک ندامت اور ایک عجیب سا ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی کیوں دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نا جو بیٹی تھی نا وہ ایک بیڈ انویسٹمنٹ تھی۔ بیڈ انویسٹمنٹ اس لیے کہ جی بیٹا ہوگا، وہ کمائے گا، کچھ لے کے آئے گا، ہمارا جو ہے نا وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، ہماری جو ہے نا نسل کو چلائے گا، یعنی یہ ان کے دماغ میں تھا۔ اور یہ تھا کہ اگر بیٹی پہ ہم انویسٹ کریں گے وہ تو کسی اور کے جو ہے نا گھر میں چلی جائے گی تو اس کا وہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جو نیریٹو تھا اس کو چینج کیا اور اس کو تبدیل کیا، وہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ کہہ کر کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اور پھر بتایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کر بڑا کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ سو ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے بیٹیوں کا ہونا جو ہے وہ تو بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اور اگر ہم واقعی میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہمیں بیٹیاں ملی اور ہم ان کے ذریعے اپنے جنت کا راستہ اتنا خوشگوار اور اتنا آسان کر لیں۔ یعنی بچیوں کو پالنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ لائف کو انجوائے کرنا، یعنی یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کو یعنی اس میں مزہ بھی آتا ہے، آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، آپ کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت ایک ذریعہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا وجہ ایسی ہوئی کہ وہ جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ ہم آج بھول گئے ہیں، ہم کیسے اس کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں ان برائیوں کی طرف، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اجاز صاحب ہیں شکر گڑھ سے۔ السلام علیکم اجاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میرا آپ کو بہت بہت سلام۔ میں نے ایک اس طرح کے لائیو شو میں پہلی دفعہ کال کیا تو اپنا کال میری مل گئی ہے۔ جی بتائیے آپ۔ راجہ ضیاء جی آپ کی آواز تو جو اب بات چل رہی ہے، پروگرام جو چل رہا ہے کہ گجرانوالہ والے کے ساتھ بات جو ہو رہی ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اس مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا رہتے ہیں اور ہمیں اس طرح کے کام نظام چل رہا ہے۔ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ جی الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کس طرح کا رشتہ ہے آپ کا؟ بہت پیار کا رشتہ۔ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ حفظ کر رہی ہے۔ خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو اچھی تعلیم دوں اور انشاءاللہ۔ اچھا، جب آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں تو اس وقت لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ کوئی ایسا بے وقوف ملا تھا آپ کو جس نے کہا بیٹی ہو گئی؟ نہیں، نو، ایسا کبھی بھی نہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو ہمیں بیٹیوں اور بیٹوں سے کیا نفرت، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ہم اسلام میں مسلمان ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم پہ دور جہالت سے بھی پہلے ادھر سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے اجاز صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں جی محمد بلال ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب السلام علیکم، فرمائیے۔ جی بلال صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ جی عمران صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ عمران صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی عمران صاحب فرمائیے جی، کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ سر مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے بات ہوئی تھی نا پہلے کہ اپنا بیٹیوں کا جو ہے اپنا زمانہ جاہلیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم زمانہ جاہلیت کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم اسے کہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس وقت جو ہے اپنا یہ تھا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو تب قتل کیا جاتا تھا، تب مارا جاتا تھا، لیکن آپ جیسے آج الٹرا ساؤنڈ جو ہے اپنا سسٹم چل گیا ہے، بندے کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو وہی میڈیسن وغیرہ یوز کر کے مار دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہماری حکومت کو یا کس کو اس چیز کے اوپر کافی سارا جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے بیٹیاں تو۔ آپ کی ہیں بیٹیاں؟ ماشاءاللہ میری 3 بیٹی، جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی نا
तो मैंने पूरी कोट लखपत जेल में, हमारे रिहायशी सेंटर जेल में, तो मैंने पूरी जेल में मिठाई बांटी थी। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। देखें ये बात हुई ना। तो मेरे माशाल्लाह मेरे दो बेटे हैं, लेकिन मैं बेटों से इतना प्यार नहीं करता जितना अपने। तो उनसे भी करें, देखें वो फिर वरना कहेंगे कि देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। आपने ये बात कर दी है, उनका भी कसूर कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्यों हम ये चीज़ दोबारा से इस माशरे में क्यों राइज होती जा रही है? असल में वैसे भाई इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स की भी एक जो ना वजूहत है। हम जिस इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पे भी आप समझ लें कि औरत की इज़्ज़त वही थी कि जब उसके शोहर का इंतकाल हो गया तो औरत को भी साथ जला दिया जाता था। और यही मेंटालिटी हमारे अंदर भी आ चुकी है कि जब जो है ना बेटी पैदा होती है, और आजकल भी मैं देखता हूँ कि जिस तरह भी आपने सवाल भी इनसे पूछा, शाज़ और नादिर ऐसा होता है कि किसी को बेटी के ऊपर वाकई में दिली खुशी हुई हो। आमतौर पे ना जब बेटी पैदा होती है तो वो एक कंसोलेशन होता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अल्लाह ताला बेटा दे देगा। हाँ, बिल्कुल, चलो अल्लाह ताला ने औलाद दी है, चलो अगली दफ़ा चलो अल्लाह ताला बेटा दे देगा। अच्छा, ये चीज़ आपके अंदर शायद आए ना आए, साइड वाले लोग जो हैं वो ज्यादा, अच्छा बेटी हुई है तो फिर बेटी पे भी मिठाई बांट रहे हो, ये सवाल इस किस्म के भी आते हैं लोगों की तरफ से। चीज़ को बदलने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि जो बेटियाँ जितना प्यार देती हैं, मैं खुद अभी आपसे पहले बात कर रहा था, मेरी अपनी 4 बेटियाँ माशाल्लाह, और जितना मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, जितना मैं खुश फील करता हूँ, मैं अक्सर उनके बारे में अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ कि आज वो एक तो अक्सर आपके साथ चुटकुले खेल रही होती है वीडियोस में। बिल्कुल, तो वो मेरे साथ, यानी यकीन करें मैं अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता उनके बगैर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो, यानी आप समझे कि जब मैं घर जाता हूँ ना तो आई गेट ट्रीटेड लाइक अ रॉक स्टार। मतलब मैं जब जाता हूँ तो बच्चियाँ भागती हुई आती हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। तो मैं, और किसी की नज़र में अहमियत हो या ना हो, उनकी नज़र में ना मेरी बहुत अहमियत है। बिल्कुल, तो मैं वाकई में फील करता हूँ कि जिस तरह से वो मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं, खिदमतें करती हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, मेरी बेटियों ने अपने घर में ना एक छोटा सा स्पा बनाया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि पापा आपको हमने ना स्पा ट्रीटमेंट देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी आंखों पे हम क्यूकम्बर्स लगाएंगे, आपको हम लोग जो है ना वो मसाज करेंगे, आपको हम आपकी दाढ़ी को जो है ना हम ब्रश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो मैं वहाँ लेटा हुआ था और उनकी ट्रीटमेंट ले रहा था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह, मैं तो इस काबिल नहीं था कि तूने मुझे इतनी अच्छी बच्चियाँ दी हैं जो माशाल्लाह इतना ख्याल करने वाली है। और मेरी वाइफ देख रही है कि आप सही बादशाहों की तरह लाइफ गुजारते हैं। और मैं बताऊँ, असल में जिस बाप की बेटियाँ होती हैं, असल में बादशाह वो होता है, वो जो लाइफ एंजॉय करता है ना। मतलब बेटे भी अच्छे होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट बेटे जो है ना वो जरा आउटडोर्स ही होते हैं, निकल जाते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो इतनी घर से के साथ कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जो बेटियों का कनेक्शन होता है, ज्यादा होता है, वो कनेक्शन इज प्राइसलेस, उसका कोई इसकी प्राइस नहीं लगा सकता। एक और कॉलर है हमारे साथ, रब नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रब नवाज साहब। पेशावर से। वालेकुम अस्सलाम। जी रब नवाज साहब, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे 4 बेटे, लेकिन मेरे 7 बहनें हैं। अच्छा, 7 बहनें हैं और 4 बेटियां, ठीक। हाँ, लेकिन मेरे एक भाई है, सबने मेरे साथ रिश्ता तो तोड़ा है कि आपकी बेटियां होती है। सबने रिश्ता तोड़ लिया है आपसे इस बात पर? हाँ, कि आपकी बेटियां होती है। तो फिर आपने उनको क्या कहा? मैंने कह दिया मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये अल्लाह की देन है, मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखेंगे किस तरह की बात है कि रिश्तेदार नाता तोड़ रहे हैं। देखिए ये वही बात है कि जो भी भाई ने भी कहा ना कि कसम खुदा की मैं बहुत गरीब हूँ पेशावर से, लेकिन मैं अपनी बच्चियों पर बहुत खुश हूँ, बहुत माशाल्लाह। देखिए आपको तो वो बात है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए तो जन्नत की वो बशारत दी हुई है, अब ऐसे लोगों तो जन्नत मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। आपकी बेटियां जो हैं उनको आप तालीम दिलवा रहे हैं? हाँ, दो स्कूल में है और 2 छोटियाँ हैं, छोटे। अच्छा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो जो है उनके नसीब और उनके मुस्तकबिल को बहुत अच्छा करें। और वो जी, बड़ी बेटी का नाम ईशा है, दूसरा का खुशनुमा है, तीसरा का अनंता है और चौथी का शुमैला है। क्या बात है, जबरदस्त। घबराना नहीं है आपने। हाँ। ये खानदान वाले आपके साथ हो या ना हो, जब आपकी बुजुर्गी आएगी तो आपकी बेटियां आपके साथ जरूर होंगी। वो तो होंगे या नहीं होंगे, आपके साथ है। मेरा एक भाई है, भाई उसने एक लड़की जी, मेरा एक भाई, उसको एक लड़की पसंद थी, अपनी माँ बाप को छोड़ दिया। उसने मुझे एक ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं, और मैंने कहा आप जैसा बेटा मुझे अल्लाह ना दे। सही बात। वो अपने माँ बाप को छोड़ गया था, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। लास्ट कॉलर भी ले लेते हैं, हमारे साथ तनवीर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके शो का बड़ा गर्विदा हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम सचता आप दोनों से ही है। जब आप करके आते हो ना, जब शिफा जब नहीं आती तो प्रोग्राम में रंग नहीं होता।
तो जब आप तो फिर खुशबू क्या करें, छुट्टी भी तो लेना मजबूरी है ना जिंदगी में, मजबूर है कभी कभी तो छुट्टी भी तो लेनी चाहिए ना। या फिर देखें शदीद कोविड के दौर में भी हम दोनों ने आप लोगों का साथ दिया है, ये तो बात एक्नॉलेज करें। आज के टॉपिक पर क्या कहेंगे? ऐसा ही है कि हम दोनों मियाँ बीवी नाश्ते से फारग होकर, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, दोनों मियाँ बीवी बैठ के आपका प्रोग्राम बड़े गौर से और शौक से सुनते हैं। और जी बताइए आज के टॉपिक पर हम क्या, आज के टॉपिक की बात ये है कि बेटे तो होते हैं बाप की जायदाद के रकीब, वो घर नहीं जहाँ बेटियां ना हों। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां दी हैं और 2 बेटे दिए हैं माशाल्लाह। लेकिन 3 बेटियों की परवरिश, बल्कि सारे बच्चों की परवरिश तो मैंने बड़ी एहतियात और बड़े मतलब खुशी से की है। मेरी तीनों बेटियां में 2 बेटियां डॉक्टर बनी हैं और एक बेटी जो है वो मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह वो भी डॉक्टर होंगी फिर। बहुत शुक्रिया सर आपने कॉल की, और हमारा मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर दोबारा से ये बात लेकर आएँ कि बार बार, और ये बात मतलब ऐसी कहने वाली नहीं है लेकिन बार बार ये बात कही जानी चाहिए भी कि बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत है और उसके बगैर वाकई घर नहीं है। सर जो मामलात हैं उनको रोकने के लिए किया क्या जाए? मतलब देखिए इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं। अच्छा इंडिया की हम बात करें, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। हमारे यहाँ पर है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो मामला है वो जिस तरह का है, हाउ कैन वी स्टॉप देम? वैसे भाई देखिए, सबसे पहली बात है अवेयरनेस क्रिएट करना कि अल्लाह ताला रिस्क देने वाली ज़ात है। अक्सर लोग जो अपने बच्चों को इस तरह से कत्ल कर देते हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करते हैं कि ये जो बच्ची है ये मेरे लिए एक मुसीबत बनेगी, मेरे लिए बोझ है, मैं इसको पालूं, इसका ख्याल करूं, या इसको यानी वही चॉइस जो ज़माने जाहिलियत में होती थी कि जी इसको हम दफना दें और इज़्ज़त पालें, या इस बोझ को अपने साथ रखें और सारी ज़िंदगी अजियत। तो ये असल बात ये कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो भाई ने कुछ देर पहले फ़ोन पे भी कहा था कि कुछ लोग जो है वो बच्चा का अल्ट्रासाउंड आने के ऊपर ही बच्चे वो जो हमल का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बाहर के ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ पे ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर पॉलिसी है कि 1 बच्चा या 2 बच्चा होगा, वहाँ पर वो प्रेफर करते हैं। और इसमें बहुत हाई केसेज हैं, यानी 60% आप समझ लो कि वो केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर टर्मिनेट कर दी जाती है प्रेगनेंसी। तो ये तो पढ़े लिखे ममालिक में भी ये जहालत राइज है, तो हम अपने बारे में क्या बात करें? तो देखिए असल चीज़ ये है कि हमें जब ये पता होता है ना कि रिस्क अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ताला बेटियों के ज़रिए आपके घरों में रहमत लेकर आता है, आपको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ज़माना जाहिलियत के अंदर एक सहाबी थे जो इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात शेयर की कि या रसूलल्लाह मुझसे गलती हुई है। ज़माना जाहिलियत में, अब मुसलमान हो चुके हैं, और उन्होंने कहा गलती ये हुई कि मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे बहुत पसंद थी और हमारा आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, और मैं उसको बुलाता था उसके नाम से, तो वो मेरे पास दौड़ी चली आती थी। तो और हमारा फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब टाइम गुजरता गया तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो लोग, वही सोसाइटी जो है वो बच्चियों को दफना रही है, बच्चियाँ जो हैं वो एक बोझ हैं, एक मुसीबत समझी जाती हैं। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब ये बच्ची तकरीबन 5-6 साल की हो गई तो मुझे भी ये ख्याल आया कि अब मुझे इसको दफना देना चाहिए। तो कहते हैं मैंने इसको तैयार वगैरह करवाया, उसकी जो है ना माँ से कहा इसको सही तरह तैयार करो, तैयार करके अब आप सोचें उस बच्ची की कैफियत, 5-6 साल की बच्ची, और ये मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक ये सबसे क्यूट तरीन एज होती है बच्चों की, यानी उस टाइम पे ना बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव भी होते हैं, प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे होते हैं। तो कहते हैं मैं उसको तैयार करके हाथ पकड़ा और उसको ये कहा कि आज हम कहीं सैर के लिए जा रहे हैं, और मैं उसको ले गया, और एक रात पहले मैंने ज़मीन के अंदर गड़ा खोद चुका था, और कहते हैं मैंने उसको वहाँ लिटा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू की, और बच्ची पूछती रही कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, बाबा ये हम कोई गेम खेल रहे हैं। और कहते हैं मैं मिट्टी डालता गया हत्ता कि वो उसके अंदर दफन हो गया। और कहते हैं फिर मैं वहाँ से चला गया, और आप यकीन करें कि जब ये वाकया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे तो आप सल्लम की दाढ़ी बिल्कुल आंसुओं से गीली हो चुकी थी, और आप रोते रहे, और फिर आपने ये बात अर्ज की कि अगर कोई ऐसा गुनाह होता जो अल्लाह ताला कभी माफ़ ना करता, हत्ता कि वो ज़माने जाहिलियत में क्यों ना हुआ, तो वो ये होता। लेकिन इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि शदीद वईद की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंसू जो है वो निकल आए, और इसको जो है वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जिस शख्स से हमें मोहब्बत करनी है और जिस शख्स से हमें सीखना है उस शख्स की ही तालीम यही है कि बेटी जो है वो रहमत ही रहमत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका, सर वक्त दिया आपने।